Hey everyone, this is Dr. Swapn and you're watching my YouTube channel Dental Expertise. And today we are focusing on crucial topic of dentistry, that is medical emergencies during dental treatment. Before that, don't forget to like and subscribe the channel and hit that notification bell so you never miss an update. Now let's get started. A partial epileptic seizure is also known as a grand mal. Patient will have convulsions, is also known as a tonic-clonic seizure, or patient may hallucinate. And the correct answer for this question is a partial epileptic seizure is patient may hallucinate. Okay. पार्शियल इपिलेप्टिक सीजर में क्या होता है कि ये जो एक्टिविटी होती है, एबनॉर्मल एक्टिविटी, वो ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट तक ही लिमिटेड रहती है. ओके. तो इसमें क्या होता है कि सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कि ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है. ओके. लाइक हेल्यूसिनेशन, सेंसेशन, इमोशंस और बिहेवियर में चेंजेस ऐसे हो सकते हैं. ओके. जबकि जो दूसरे सीजर्स हैं लाइक ग्रैंड mal सिनोजर, जिसे टोनिक क्लोनिक सीजर भी कहते हैं, उसमें पूरा ब्रेन इन्वॉल्व होता है और कन्वर्जन्स भी होते हैं. ओके. बट इसमें पूछा गया पार्शियल एपिलेप्टिक सीजर के बारे में. तो इसमें क्या होता है, पेशेंट जो है हेल्यूसिनेशन जैसे चेंजेस आते हैं. ओके. तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पेशेंट में हेल्यूसिनेट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a patient has an epileptic seizure in the dental surgery, they should be given a muscle relaxant like midazolam. They should have a mouth prop placed to prevent tongue biting. They should be rolled onto their sides, or if they vomit, they should be wiped clear from their mouth. So the correct answer for this question is they should rolled onto their sides. तो उसमें क्या होता है कि अगर पेशेंट को डेंटल ट्रीटमेंट के टाइम पे एपिलेप्टिक सीजर्स हो जाए तो जो रिकवरी पोजीशन होती है वो क्या होती है, साइड पर रोल करना. वो क्यों होती है साइड, इट शुड बी रोल्ड ऑन टू देयर साइड्स. ऐसा क्यों करना है, ताकि क्या होता है कि जो उनका एयरवे है वो क्लियर रहे और चोकिंग का जो रिस्क हो वो कम हो. ओके. स्पेशली जब उनको वॉमिटिंग हो तब. So the correct answer for this question is if a patient has an epileptic seizure in the dental surgery, they should be rolled onto their sides. Next question is hypoglycemia is a type of unconsciousness, low insulin level, low blood pressure, or low blood sugar. So the correct answer for this question is low blood sugar. तो हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स ब्लड शुगर लेवल का कम हो जाना. ओके. तो ये उन लोगों में होता है जिनको होता है, ये मोस्टली डायबिटीज पेशेंट को. तो ये कब हो जाता है, जब वो ज़्यादा इंसुलिन ले लेते हैं, या वो मील मिस कर देते हैं, या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा कर लेते हैं. तो उससे क्या होता है कि शेकीनेस हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, और अगर इसे प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाए तो अनकॉन्शियस भी हो सकता है पेशेंट. ओके. तो हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, इट इज़ अ लो ब्लड शुगर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज hypoglycemia is easily confused with other medical emergencies, occurs when the blood glucose drops below 4 mole per liter. It is treated by giving insulin, or it is treated by giving adrenaline. So the correct answer for this question is it is easily confused with other medical emergencies. Okay. A potential hypoglycemic attack in the dental practice is diagnosed by correctly assessing sign and symptoms with an electronic instrument, by the failure of the patient to regain consciousness in a couple of minutes after being laid flat, or by the failure of patient to respond CPR. And the correct answer for this question is by correctly assessing sign and symptoms. तो जो पोटेंशियल हाइपोग्लाइसेमिक अटैक होता है वो कैसे डायग्नोसिस करते हैं, पेशेंट के साइन और सिम्टम को देख के कि ओके, लाइक शेकीनेस, कंफ्यूजन, स्वेटिंग, अनयूजुअल बिहेवियर. ओके. जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है वो किस लिए होता है, कौन सा होता है, जैसे कि ग्लूकोमीटर, वो क्या करने के लिए होता है, ब्लड शुगर लेवल को मेजर करने के लिए यूज करते हैं. ओके. तो ये याद रखना है आपको. मगर डायग्नोस किससे करेंगे, साइन एंड सिम्टम से, जो कि क्या होते हैं, शेकीनेस, कंफ्यूजन, स्वेटिंग एंड अनयूजुअल बिहेवियर. ओके. स्वेटिंग, clammy skin can be caused by hypoglycemia, myocardial infarction, fainting, or all of the above. तो जो स्वेटिंग क्लैमी स्किन है वो सभी कंडीशंस में हो सकती है, लाइक हाइपोग्लाइसीमिया,
मायोकार्डियल इन्फेक्शन, फेंटिंग, इन सभी में हो सकती है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दी अबव। ओके, तो हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है कि बॉडी में जो है लो ब्लड शुगर हो जाती है। ओके, हाइपोग्लाइसीमिया में तो उसके कारण भी स्वेटिंग हो जाती है और क्लैमी स्किन होती है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि जब हार्ट अटैक आता है तो उसको स्ट्रेस को हैंडल करते हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है उसके कारण भी पहले स्टार्टिंग में बहुत स्वेटिंग होती है। ओके, नेक्स्ट होता है फेंटिंग यानी कि सिनकोप, तो उसमें भी स्वेटिंग और क्लेमी स्किन हो जाती है जो क्योंकि वो ब्रेन तक ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता इसीलिए। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। वोमिटिंग कैन बी कॉज्ड बाय मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एड्रिनल क्राइसिस, इपिलेप्टिक सीजर और ऑल ऑफ द अबव। तो वोमिटिंग जो है ये किसी भी कंडीशन में हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी हो सकती है क्योंकि स्ट्रेस होने लगता है बहुत ज़्यादा, तो उसके रिस्पॉन्स के कारण नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है। एड्रिनल क्राइसिस में जब बॉडी में कॉर्टिसोल की कमी हो जाती है तो उसके कारण भी वॉमिटिंग के सिम्टम्स हो सकते हैं। एपिलेप्टिक सीजर में क्या होता है कि पोस्टिकल स्टेट के कारण भी वॉमिटिंग हो सकती है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो इन तीनों कंडीशन में वॉमिटिंग कॉज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when a patient has recovered from a severe anaphylaxis, they should be given oxygen, intramuscular steroid, intravenous steroid, or intravenous adrenaline. So the correct answer for this question is oxygen. Okay, when a patient has recovered from a severe anaphylaxis, they should be given oxygen. Okay, ताकि उसको रेस्पिरेटरी सपोर्ट जो है वो अच्छे से मिल सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of these is not a sign of anaphylaxis? Urticaria, rash, repeated coughing और slurred speech। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? slurred speech. slurred speech is not a sign of anaphylaxis. ओके, क्योंकि जो एनाफाइलेक्सिस में होता है मोस्टली क्या होता है कि अर्टिकेरिया, रैशेस और रिपीटेटेड कफिंग ये सब जो है एनाफाइलेक्सिस के बाद में दिखाई देते हैं क्योंकि ये एक एलर्जिक रिएक्शन होती है स्किन के या रेस्पिरेटरी सिस्टम के। ओके, तो ये सभी दिखाई देंगे एक्सेप्ट होगा स्लर्ड स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Angina pectoris can be caused by narrowing of coronary artery, blockage of coronary artery, a blood clot breaking off and lodging in the heart. And the correct answer for this question is all of the above. तो angina pectoris can be caused by all of the above. It means कि narrowing होगी coronary artery की due to atherosclerosis and it can reduce blood flow to the heart and it leads to angina. और second है blockage of coronary artery. It can also prevent adequate blood flow तो जिसके कारण की angina के symptoms आ सकते हैं। थर्ड होगा a blood clot which is called embolism breaking off and lodging in the coronary artery and it can block the blood flow and which causes angina. Okay, so the correct answer for this question is all of the above. Okay, next question is during an asthma attack the bronchi are irreversibly narrowed, there may be wheezing when breathing in, the nose and mouth may fill with mucus, there may be repeated coughing. So the correct answer for this question is there may be repeated coughing. Okay, so during an asthma attack, repeated coughing is a common symptom as the airway becomes inflamed and narrowed. तो जो जिससे कि करेक्ट आंसर ये होगा, बट जैसे ऑप्शन दिया द ब्रोंकाई आर इरिवर्सिबली नैरोड तो ये इनकरेक्ट होगा बिकॉज नैरोइंग इज यूजुअली रिवर्सिबल विद द ट्रीटमेंट। ओके, तो उसे रिवर्सिबल हो जाता है वो ट्रीटमेंट के बाद। देयर में बी वीजिंग विद व्हेन ब्रीदिंग इन, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज वीजिंग typically occurs during the exhalation rather than inhalation. Okay, so this is also incorrect. The nose and the mouth may fill with mucus and it is less common. Okay, कि nose and mouth fill with mucus हो जाए ये less common है, while mucus production can increase, it is more about the airway rather than the nose and mouth filling up. Okay, so the correct answer for this question is during an asthma attack there may be repeated coughing. Okay, next question is how should salbutamol be given for an acute asthma attack in dental surgery? With an inhaler, with a large volume space device, or through an endotracheal tube, through an oxygen mask? So the correct answer for this question is with
Salbutamol will given for an acute asthma attack in the dental surgery with a large volume spacer device. Okay, तो इसमें क्या होता है कि सॉल्ब्यूटामॉल जो है एक्चुअली क्या होता है, मोस्ट इफेक्टिव डिलीवर्ड होता है विथ अ लार्ज वॉल्यूम स्पेसर डिवाइस। ओके, व्हेन यूजिंग एन इनहेलर। ओके, तो ये क्या होता है, ये जो मेथड होती है वो इनहेंस कर देती है मेडिकेशन की डिलीवरी को टू द लंग एंड हेल्प्स विद द बेटर एब्जॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज choking is mostly likely when an inferior dental block has been given, when rubber dam is present, when using an air turbine, when the patient is supine, lying fully back. The choking is mostly likely to occur when an inferior dental block has been given. Okay, तो इसमें क्या होता है कि स्पेशली ये फिट होता है और अफेक्ट करता है थ्रोट मसल्स को, विच कैन इम्पेयर swallowing and lead to the risk of aspiration. Okay, so the correct answer for this question is choking is mostly likely when an inferior dental block has been given. Okay, सबसे ज्यादा choking की संभावना होती है इस टाइम inferior dental block के टाइम में. Okay, तो ये आपको याद रहेगा. Next question is, after an epileptic seizure the patient may remain unconscious but still. The patient may regain consciousness but be confused. The patient may return to normal very quickly. All of the above. So the correct answer for this question is all of the above. Okay, after an epileptic seizure इसमें क्या होता है कि ये सभी चीजें हो सकती है. पेशेंट में रिमेन अनकॉन्शियसनेस बट स्टिल सम पेशेंट में टेक लॉन्गर टू रीगेन कॉन्शियसनेस. द पेशेंट में रिगेन कॉन्शियसनेस बट बी कंफ्यूज. तो पेशेंट कॉन्शियस तो होगा बट इट इज कॉमन फॉर द पेशेंट टू एक्सपीरियंस कंफ्यूजन. ओके, और डिसओरिएंटेशन आफ्टर अ सीजर. ओके, एंड द पेशेंट में रिटर्न टू नॉर्मल वेरी क्विकली. पर कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो रिकवर हो जाते हैं रैपिडली विदाउट एनी कंफ्यूजन और प्रोलॉन्ग अनकॉन्शियसनेस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ओके, ऑक्सीजन टैंक्स आर ऑलवेज which color? And correct answer for this question is green. Okay, तो ऑक्सीजन टैंक किस कलर के होंगे? ग्रीन कलर के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which is a sign of hyperglycemia? Rapid pulse, excessive thirst, blurred vision or headache? And the correct answer for this question is excessive thirst. Okay, excessive thirst जो है किसका साइन होगा? हाइपरग्लाइसीमिया का, which means high blood sugar. It is a commonly associated with excessive thirst known as polydipsia. Okay, और दूसरे भी frequent symptoms होते हैं like urination, fatigue, blurred vision, ये भी हो सकते हैं होंगे. बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? excessive थर्स्ट. ओके, इसमें रैपिड पल्स नहीं होती है. हाइपरग्लाइसीमिया में ये टिपिकल साइन नहीं होगा. ब्लर्ड विजन हो सकती है बट एक्सेसिव थर्स्ट इज मोर प्रोमिनेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which is not included in the pre-operative dental evaluation for emergency preparedness. The options are vital sign, oral history, radiographic imaging, or written medical history. And the correct answer for this question is radiographic imaging. Radiographic imaging. Radiographic imaging is not included in the pre-operative dental evaluation for emergency preparedness. Okay, तो रेडियोग्राफिक जो है इमेजिंग जो है वो आमतौर पर यूज नहीं होता है. ओके, एवेल्यूशन करने के लिए. बाकी वाइटल साइंस यानी कि ओवरऑल हेल्थ एवेल्युएट किया जाता है. ओरल हिस्ट्री, तो उसमें क्या होता है कि डेंटल इश्यूज ट्रीटमेंट किए जाते हैं कि ओरल हिस्ट्री पता होनी चाहिए. रिटन मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट की हेल्थ, मेडिकेशंस, एलर्जीज, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेना जरूरी होता है. ओके, तो इसमें क्या इन्वॉल्व नहीं होगा? रेडियोग्राफिक इमेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड एडवांस्ड ट्रेनिंग? यूज ऑफ एयरवे adjuncts such as nasopharyngeal airways, bag valve mask device, oxygen powered breathing device, or mouth to mask breathing technique. And the correct answer for this question is oxygen powered breathing device. Okay, तो ऑक्सीजन पावर्ड जो है ब्रीदिंग डिवाइस को सबसे सेफली इफेक्टिवली यूज करने के लिए एडवांस ट्रेनिंग की जरूरत होती है क्योंकि स्पेसिफिक टेक्निक होती है
एयरवे मैनेजमेंट के लिए। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसलिए ये ऑक्सीजन पावर्ड ब्रीथ जो डिवाइस है उसके लिए एडवांस ट्रेनिंग की जरूरत होती है। विच इमरजेंसी ड्रग should not be included in a dental emergency kit? Insulin, aspirin, glucose, or diazepam? And the correct answer for this question is insulin. Okay, तो इंसुलिन जो है वो उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है इमरजेंसी डेंटल इमरजेंसी किट में, क्योंकि ये डायबिटिक पेशेंट के लिए स्पेसिफिक होती है, डेंटल इमरजेंसी के लिए नहीं होती है। ओके, जबकि जो एस्पिरिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो पेन रिलीफ होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी होती है। ग्लूकोज इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। डायजेपाम भी इंक्लूडेड होता है टू मैनेजिंग एंजाइटी और सीजर्स में। ओके, और इंसुलिन जो है वो इंक्लूडेड नहीं होती। ओके, next question is, corticosteroids are the definitive treatment for which emergency situation? Hypoglycemia, acute bronchospasm, management of seizures, acute adrenal insufficiency. Okay, and the correct answer for this question is acute adrenal insufficiency. Corticosteroids are the definite treatment for acute adrenal insufficiency. Okay, तो इसमें क्या होता है, जब बॉडी स्ट्रेस या इलनेस के टाइम पे कॉर्टिसोल का नहीं बना होता है, तब कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं एक्यूट एड्रिनल इंसफिशियंसी के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज नॉट अप्रूव्ड फॉर यूज इन इमरजेंसी विदाउट एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट सर्टिफिकेशन? एंड द ऑप्शंस आर ऑक्सीजन, मॉर्फिन, डायजेपम और मेटाप्रोटेरोल। And the correct answer for this question is morphine. ओके, तो मॉर्फिन जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट सर्टिफिकेशन के बिना इस्तेमाल के लिए अप्रूव्ड नहीं है, क्योंकि ये एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है और इससे हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ओके, तो इसे नॉर्मली कार्डियक लाइफ सपोर्ट के लिए सर्टिफिकेशन के लिए ये यूज नहीं किया जाता है। ओके, तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।